Okay, I thought हमारा तो 4 हो गया है. So we have some practice questions. Tutorial 4 भी I am pasting the like slides here on the post. आप ये देखिए एक बार. These are the practice questions for all the topics that we have discussed earlier. Correct? तो हम 10-15 मिनट ये आप देखिए और जितने प्रोग्राम्स बना सकते हैं इसके अंदर आप एक बार बनाइए. और जो स्लाइड्स हैं इट्स मोर ओवर लाइक देर आर सर्टन कोड एंड यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दोज. आई इट मीन्स लाइक लॉजिक is there and you have to tell me what should be the outcome. As I have pasted in 2 slides, there is an outcome also shown. I will share it with you. I'll explain how it has to be done. Excuse me, ma'am. Yes. रोल नंबर. हेलो. हाँ जी. मैम वो रोल नंबर 35 के लिंक नहीं आ रहा था क्लास का पार्थ जे करके. ओके. अभी तो तो मैंने आप. रिजॉल्व कर लिए थे. चलिए आई एम नोटिंग इट डाउन. यस मैम. मैम मुझे भी लिंक नहीं मिली. रोल नंबर 35. अपना रोल नंबर बोल दो बेटा. रोल नंबर 30. 30. ओके. चलिए 37. ओके. 37 भी. ओके. मैम अभी क्या करना है? अभी हम आपको बता रहे हैं ना. कैन यू सी दी स्लाइड्स? यस मैम. Yes. So what we are supposed to understand here is that whenever you want to solve any problem, there is some expression that need to be formulated and you have to use it in the program. जैसे आपको फिबोनाची सीरीज बनाना है या आपको एवरेज ऑफ नंबर्स लेना था या मार्कशीट वाला प्रोग्राम बनाना था, तो there is always some expression that you have to, some equation that you have to develop so that you can solve that problem. So we did that also. In operators we saw that how can you mathematically frame an expression, and then there were certain iterations and conditional statements जहाँ पर आपने अलग अलग तरह से उसको यूज़ किया. if else for making a choice. So something like this all together brings up a solution. For example, you can see there is some logic here. It has been given to you as a logic. Now when you want to simulate it, यानी कि अभी आपके पास में ये तो एक्सप्रेशन लिखा नहीं है सी के सिंटेक्स में. इट इज समथिंग लाइक स्टेटमेंट बट नॉट एग्जैक्टली फुल इंग्लिश टाइप स्टेटमेंट, बट हम इसको कहते हैं सूडो कोड. ये कोड की तरह दिखता नहीं है, दिखता है पर किसी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, जैसे प्रिंट एन. सो वी ट्राई टू राइट दी concepts in the form of a pseudocode. Now this pseudocode can be converted into any language. You can convert it into Python, you can even convert it into C++, C, Java, anything. बस हमें क्या करना होता है, इस pseudocode को कन्वर्ट करना होता है किसी भी लॉजिक में. सो पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए थी वो थी फ्लो चार्ट, एंड वी टॉट दैट ऑल्सो इन द ट्यूटोरियल सेशन. नाउ व्हेन द फ्लो चार्ट इज रेडी, the next thing is when there will be complicated program, you may not try to spend time drawing the diagram. So what will you do? You'll write a code snippet, like a small fraction of the code written like this, wherein you'll try to work out the solution of the program. तो ये लिखना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि आप इससे एल्गोरिथम बना सकते हो. The algorithm is steps written in some pseudo convention. So we call it an algorithm at the end. So this algorithm works very well क्योंकि आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं इस कंसेप्ट को किसी भी लैंग्वेज में मैप करके और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा. बट कंसेप्चुअली इसको लॉजिक कहेंगे, एंड लॉजिक बिल्डिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर एनी प्रोग्रामिंग फील्ड. I told you, you will be the persons who will be making the best programs ever, useful programs. So how do you judge what kind of programs can be written? So here is an example. Can you tell me what will be the output of this? Anyone?
मैम वैल्यू क्या लेनी है? आप अज्यूम करो ना, whenever there is an output asked from a pseudocode or a program, you can assume a value. Input taken from the user लिखा है ना उसमें, so assume it is 5. तो क्या होगा? You can go stepwise. 0 to 4. हम्म, सोचो क्या हो रहा है, स्टेप वाइज इसको क्रैक करो. सी व्हाट इज हैपनिंग, n इज इक्वल टू 5. वाइल, ग्रीन वाला वाइल देखे, पूरा वाइल लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक n 0 से बड़ा है. करेक्ट? इट्स रिटन n मोर देन 0. करेक्ट और नॉट? Correct. Correct. So it means within the loop n is going to definitely decrement. ये भी बात पक्की हो गई कि n जो है वो उल्टी गिनती गिनने वाला है, तो इसका मतलब n डिक्रीमेंट होता जाएगा. तो अब देख लेते हैं ये कैसे होगा. तो सबसे पहले while के अंदर जाएंगे तो what will happen, c is assigned the value of n and then there is again a loop, blue while, जो blue वाला है. करेक्ट? सो now that c has the value of n, यानी कि 5 है तो 5 ही रहेगा. और 5 टाइम्स उसको लूप में अंदर घुसते ही क्या करने के लिए मिला? प्रिंट n. n की वैल्यू क्या थी पहली बार में? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ n? We 5. started with 5. 5. So it will print 5. Then c will become c minus 1, यानी कि c की वैल्यू क्या थी अभी? c is equal to n, यानी कि 5 थी. अब क्या बन गई while के अंदर? डिक्रीमेंट होके 4 बन गई. नाउ बिकॉज c has the value 4 which is more than 0, so it will come back into the while loop, यानी ब्लू कलर वाला while loop के अंदर ही रहेगा वो, और ये फिर से वापस से प्रिंट n कर देगा. n की वैल्यू क्या है अभी? 5 ही है, तो 5 हाँ. दूसरी प्रिंट हो गया, फिर तीसरी बार प्रिंट होगा, चौथी बार प्रिंट होगा, जब तक कि c 0 नहीं हो जाता. तो कितनी बार प्रिंट हो गया n? जितनी c की वैल्यू थी. c की वैल्यू कितनी थी? 4. 5. 5. सी की वैल्यू देखो, ब्लू वाला प्लस बॉक्स है उसके 5. ऊपर 5. करेक्ट? तो प्रिंट कितनी बार हो गया? 5. 5 बार प्रिंट हो गया. अब जैसे ही 5 बार प्रिंट हो गया तो बाहर आया, तो उसे क्या मिला? n इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि अब 5 बन गया 4. वापस से पूरी कहानी ऊपर गई, c इक्वल टू n, वाइल चला और प्रिंट n, यानी कि क्या प्रिंट होगा अब की बार? 4. 4. कितनी बार होगा? 4 बार. 4 बार. तो इसका मतलब ये क्या बनाया हमने? पिरामिड ही बनाया, जो आपको करने के लिए मिला था. करेक्ट? सो यही चीज आपको प्रोग्राम्स में भी मिल रही है. तो जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है और फिर इसको बनाकर देखा कि व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड बाय द प्रोग्राम एंड यू कैन सी द आउटपुट. सो यू हैव टू चेक ऑल द प्रोग्राम्स गिवन हियर and tell me the output. Okay? And there is one more explanation, because you have to write, this is an example wherein you have been given certain programs and you are going to tell me the output. पर आपको दूसरी चीज एक लॉजिक बिल्डिंग भी दिखाना था. तो ये एक लॉजिक है टू फाइंड अ लीप ईयर. तो अब लीप ईयर के पहले तो हमें रूल्स पता होने चाहिए, तो हमने रूल्स लिख लिए. इसका मतलब एक्सप्रेशन यहाँ पर से ही बनने वाला है कि वेदर a year is a leap year or not has to be evaluated by checking these conditions. So divide by 4, divide by 100 and divide by 400. ये तीन operations होंगे and you can see that they are conditional statements. So it means that if you have to check it, then you divide it by 4 and then you divide it by 100 and then you divide it by 400 and then only you can decide that there is a leap year. So how could you write a program that handles such, कह सकते हैं, logic? So try to devise algorithm and the steps are simple. First you must know the rules and when you know the rules definitely you can write the logic also. तो अभी तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है लीप ईयर का. आई विल आस्क यू टू मेक
a logic for these, for other such examples, but for the time being, to start with today, you have to tell me the output of all these programs given in the slide. To tutorial 4, you can open everybody and start making the program and let me know when you are done. Okay? And Yes, we'll ma'am. come back in 10 minutes and we'll share the outputs. Okay? 10 मिनट्स में हो जाएगा? कितनी प्रोग्राम्स हैं? थोड़े से ज़्यादा हैं. लेट्स टेक 20 मिनट्स. ओके, वील मीट एट 4:45. तब तक जितने प्रोग्राम्स हो सकते हैं, यू टेल मी द आउटपुट ऑफ दोज प्रोग्राम्स. ओके, डन. Yes, Try ma'am. making the programs and tell me the output. We'll meet at 4:45. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am.
हो गए सबके? कैन वी डिस्कस द आउटपुट्स नाउ? चलो ठीक है। तो द फर्स्ट वन वाज द लॉजिक, द सेकंड आउटपुट आई हैड ऑलरेडी शोन, ये तो आपने प्रोग्राम भी बना लिया था। थर्ड भी मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया है। उसके बाद वाले में क्या हो रहा है? डिड यू ट्राई मेकिंग इट? int n rev reverse equal to 0 rem, ये वाला प्रोग्राम। Got it? Slide number 5. What is the output of this program? Anybody who has done? नहीं किया? चलो मेरे साथ कौन करवाएगा? We'll see how it works. Who is going to help me? Anyone? कौन मेरे साथ इसको सॉल्व करेगा भाई? Anyone? Anyone name? Ma'am, I can help. हाँ जी, रिवर्स हो जा रहे हैं डिजिट्स, राइट? और कैसे हो रहे हैं? डिड यू सी द टेक्निक? क्या करना था हमें? हमें हर इसको बार बार 10 से डिवाइड करते गए हम, और डिवाइड करते तब तक गए जब तक कि क्वोशंट 0 नहीं आ गया, और हर बार रिमाइंडर नोट करते गए, और रिमाइंडर से वो डिजिट्स बनाते गए जो कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर लेगा। अगर 1 2 3 डाला होगा तो 3 2 1 आ जाएगा। मैम आपने पहले सिखाया है ना, वो फर्स्ट लेक्चर में शायद से था, हाँ रिवर्स हाँ। ऑर्डर वाला। तो बस वैसे ही है। So but you must know there can be many ways of doing it. It's not just one single way. See, every person thinks differently. हम सब अलग अलग सोचते हैं। हम भले एक क्लास में हैं पर हम सबके सोचने का तरीका अलग होता है। सो ऑल्सो लॉजिक बिल्डिंग सेज कि हर किसी को प्रोग्राम सॉल्व अगर करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और प्रोग्राम बनाना है, तो देयर कैन बी मेनी वेज। सो दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू टेल यू दैट देयर आर सो मेनी वेज इन डूइंग अ थिंग, राइट? लीप ईयर वाला बनाया किसी ने? कोशिश की बनाने की लॉजिक? अच्छा चलो, लीप ईयर नहीं भी बनाया हो तो नेक्स्ट वाले में क्या किया है हमने? इंट ए इज इक्वल टू 300 वाले में क्या आ रहा है? एबीसी का आउटपुट। अरे आप लोगों ने तो टाइम दिया गया था ना, हम लोग ये एक्सरसाइज करते थोड़ी सी। हाँ, इतना ऐसे क्यों आएगा? बी की तो हमने दे रखी है, बी और सी। बी 300 हो जाए, सी 200 हो जाए। अच्छा, यही आ रहा है। बी की वैल्यू, क्योंकि आपने ए की वैल्यू 300 दी और आपने कंडीशन लगाया कि जब ए की वैल्यू बड़ी हो तब बी की वैल्यू को 300 करे, अदरवाइज वो बी की कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा रहा होगा। अब वहां पर बी इज इक्वल टू 0 कर लीजिए तो वो कोई वियर्ड वैल्यू नहीं लेगा बी की, करेक्ट? अब अगर ए को 300 ना देके 600 कर दें तो आउटपुट क्या आएगा? 600 300 और 200। 600 300 और 200, करेक्ट? हाँ जी, सी में क्योंकि असाइन हो गया है 200। मैम वो पहले वाले प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, आपने कहा ना कि 300 हाँ ली तब। हाँ, तो 300 ली तो होगा क्या? इफ a is equal to 300 then what was your answer coming out to be? आपका आंसर क्या आ रहा था? तो c की तो 200 आएगी ही, b की वैल्यू वियर्ड आ रही है, करेक्ट? क्योंकि b आपने इनिशियलाइज नहीं किया, और आपने इफ कंडीशन क्या लगाई कि जब a बड़ा हो तो b को 300 सेट करे, पर छोटे के लिए आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई।
तो बी की जो भी वैल्यू इनिशियलाइज करते समय रही होगी तो इट इज टेकिंग अप दैट वैल्यू एंड इट इज गेटिंग प्रिंटेड। बी पर ही लग रही है क्योंकि इफ के बाद कर्ली ब्रैकेट बना के बी और सी दोनों को साथ में चेंज करने नहीं कहा आपने। आपने कहा जब ए की वैल्यू 400 से ज्यादा हो तब बी को 300 कर दे, क्योंकि इफ के बाद अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो अपने आप ही जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल विथ दैट कंडीशनल स्टेटमेंट। There's no other statement goes into it. If you want that in condition, if you have to change B and C both, then you'll have to put it in curly bracket. Otherwise, सिर्फ B के लिए applicable है, correct? तो ये भी हो गया। उसके बाद वाले में आते हैं x is equal to 3, y is equal to 5. यस मैम। इसमें क्या आ रहा है? 3 और 5। 3 और 5। तो क्यों आ रहा है 3 और 5? else लिखा ना आपने तो। यस, सेमीकोलन इज अ नल स्टेटमेंट। तो आपने else को कह दिया कुछ मत करो, और else अपने आप ही सेमीकोलन को नल स्टेटमेंट मान के उसने एग्जीक्यूट कर लिया else पार्ट में। अदरवाइज वो प्रिंटफ नहीं करता। अगर आप कोई दूसरी वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 3 की जगह जो कि कंप्लाई नहीं करती और फॉल्स होती, तो फॉल्स के केस में अगर हम चाहते थे कि y प्रिंट हो जाए तो हमें सेमीकोलन नहीं लगाने का। सेमीकोलन नहीं लगाना है। करेक्ट। आप लोग तो बहुत सारे आपने क्रैक कर लिए, वेरी गुड। और उसके बाद वाले में इफ x इक्वल टू y, एक्स वाई आर इक्वल। मैम वो समझ नहीं है अगर y की वैल्यू प्रिंट करनी हो तो। y की वैल्यू प्रिंट करना हो तो पहले तो सेमीकोलन उड़ा दो, क्योंकि कभी भी कंडीशनल स्टेटमेंट में सेमीकोलन नहीं जाता। जैसे इफ के बाद नहीं लगा, एल्स के बाद में नहीं लगना था। और दूसरी चीज, आपने x की वैल्यू 3 ही दे रखी है तो हर बारी कंडीशन ट्रू ही होगा, x इक्वल टू 3। तो अगर हाँ आप हाँ, x पार्ट में जाना चाहते हैं और y आप तभी प्रिंट करना चाहते हैं जब कंडीशन एक्स फॉल्स हो, फॉल्ट। ऊपर x की वैल्यू चेंज कर दीजिए। ओके। करेक्ट। उसके बाद वाला स्विच केस वाला, व्हाट इज इट प्रिंटिंग? व्हाट इज इट प्रिंटिंग? वो एक्स और वाई इक्वल आ रहा है वो वाला। नहीं, उसके बाद वाला वो तो हो गया ना। मैं वो नहीं हुआ एक्स इक्वल्स टू वाई वाला, एक्स इक्वल्स टू 3 और वाई इक्वल्स टू 3.0 वाला। क्यों? बाकी है ना, आपने कहा कहा। ये तो लॉजिकल था इसलिए इसको तो अभी तो हाँ तो बोला, किसी ने बोला कि इट्स डन। चलो, so what output are you getting? Is integer 3 equal to floating point 3 dot o or not? कुछ देता है, कुछ गड़बड़ देता है प्रोग्राम, एरर तो नहीं बताता। नो मैम। तो हो तो गया फिर। नेक्स्ट वाला स्विच केस। और पहले वाले हेलो का क्या होगा? वो तो कोई केस ही नहीं लिखा है उस पे। उसमें एरर दिखा रहा था। एरर दिखा रहा था? क्या एरर दिखाया? हम्म एरर नहीं दिखा रहा होगा। क्या बेटे? ओ,
switch unreachable. अच्छा, स्विच पे हमने क्या कहा था कि वेरिएबल हो और बट चलो, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? हम्म, इतने दुखी क्यों हो पहले सब लोग? कोई कुछ बोले नहीं रहा है। मैम इसका लॉजिक ही समझ नहीं आया। किसका? स्विच केस का? हाँ स्विच वाला। यस मैम। हम्म, तो स्विच केस में करते क्या है? मैं तो जेनरिक पूछ रही हूँ। इन केस यू हैव बीन गिवन सम स्विच केस स्टेटमेंट टू राइट, व्हाट शुड इट इंटेंड टू डू? क्या होना चाहिए? हम्म, क्यों लिखते हैं हम? हाँ। जो भी हम वैल्यू देते हैं उसको वो वाली चीजें एग्जीक्यूट करनी होती है, करेक्ट? तो हमने क्या दिया यहाँ पे? हमने क्या दिया? वन दिया है मैम उसमें तो। हम्म, केस दो बनाए हैं, पर हमने यहाँ पर और भी कुछ किया। प्रिंट एफ की जगह पे केस नहीं लिखा है आगे, और ब्रेक भी यूज किया है। हम्म, तो करना क्या चाहिए? हम्म, इट विल बी प्रिंटिंग समथिंग। और आपने देखा करके उसने लिखा होगा दैट स्टेटमेंट विल बी आई प्रिंट कर रहा है मैम वो खाली। आई प्रिंट कर रहा है ना? लेकिन That's what I was telling you. हम्म, तो पर एग्जीक्यूटिव ये भी हो रहा लिखा है रहा ना। है कि एक चीज कह रहा है वो कि इट विल नॉट बी रीचेबल। यस मैम। वो हेलो की वजह से ना। हाँ जी। सो पहली चीज तो वो कह रहे हैं आपको, आपको कह रहा होगा, वार्निंग दे रहा होगा। इट्स नॉट एन एरर। वार्निंग मीन्स इट विल एग्जीक्यूट, but it is telling you that there is some statement which will never be executed, जो कि है हेलो। क्योंकि वो कभी आप एक्सेस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके आगे आपने कोई केस लेबल किया ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ओके इट्स अ वार्निंग। इट इज नॉट सेइंग दैट इट इज एन एरर। इफ देयर इज एन एरर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। पर यहाँ पर इसने हाई लिख के आउटपुट तो आपको दिया, बट along with it there was a warning. ओके? ओके मैम। तो अब उसके बाद वाला, अभी आपकी कोई क्लास तो नहीं है ना? है मैम। है। चलो ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिफ्थ वाला भी। So we have a lot of questions to discuss in the next tutorial. Okay? यस। So I'm थैंक यू ending. मैम। Thank you, bete.